very logical day to all of you. And what we are going to discuss today is the first editorial of the Indian Express. That is the second strike. Now, February 12th, the Indian Express first editorial, second strike, बढ़िया है. लेकिन सेकेंड स्ट्राइक है किसका ये हम समझेंगे. यूएस का है. तो यूएस का फर्स्ट स्ट्राइक क्या था. फर्स्ट स्ट्राइक था जब हमने 2 दिन पहले भी पढ़ा था उसके बारे में, that it has come up with the imposing of the tariffs on Canada, China and Mexico. मेक्सिको एंड कनाडा के लिए उन्होंने 30 days का डीले कर दिया कि ठीक है 30 दिन के बाद हम देखेंगे उसे. चाइना का उन्होंने अप्लाई कर लिया, इम्प्लीमेंट कर दिया. तो नेक्स्ट डे वी रेड दैट चाइना हैज आल्सो रिस्पोंडेड, राइट. हमेशा क्या है उसने, और उन्होंने अभी भी क्या, टैरिफ्स पे ये पूरा ट्रेड वॉर चल रहा है. तो सेकेंड स्ट्राइक में देखते हैं व्हाट यूएस हैज डन, हाउ इंडिया शुड वर्क, हाउ इंडिया शुड फेस इट और कन्फ्रंट इट, or what steps can India take like now because Mr. Modi is there. So we need to understand that, and that is what the author has given in his article. It's a short one, not very difficult, but we need to understand what he has conveyed. So, US President Donald Trump has opened another front in the trade wars. On Monday, he signed orders levying 25% tariffs on all steel and aluminum imports. Right? So, there is no exception and there is no exemption. Right? Now, Trump is also reported to have talked about unveiling reciprocal tariffs over the next few days. तो reciprocal tariffs भी वो लेके आएंगे. तो रेसिप्रोकेट या रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिव एंड टेक. आपने कुछ किया और पलट के आपके पास वही फीलिंग आई. तो 2/3 and 3/2. If you hate somebody, that person reciprocates your feeling. If you love somebody, that person reciprocates your feeling. तो मतलब वो वापस से वही फीलिंग आती जो आप देते हो. ठीक है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. Now the tariffs on steel and aluminum will hurt a large swath of countries. बहुत सारी कंट्रीज पे अफेक्ट तो पड़ेगा अगर ये टैरिफ्स इंक्रीज हो जाते हैं तो. कंट्रीज लाइक कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील एंड साउथ कोरिया, they are among those likely to be affected and have already evoked strong reactions. Already evoked means these countries has like started reacting and responding to it. कि उन्होंने क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया है ट्रम्प ने, उनके ऊपर कितना परसेंटेज है, उस हिसाब से वो जवाब भी दे देंगे. तो वो इवोक इज टू ब्रिंग आउट दोस फीलिंग्स. तो वो रिएक्शंस लेके आई हैं बाहर. अब कैसे रिएक्शन थी उसका एग्जाम्पल. Canada's industry minister is reported to have said that the country will give a clear and calibrated response. बिल्कुल क्लियर, डिस्टिंक्ट, कैलिब्रेटेड इज मेजर्ड रिस्पॉन्स देंगी. While Ursula von der Leyen, president of the European Commission, has said that the imposition of tariffs will not go unanswered. मतलब वो भी जवाब देंगे, राइट. तो जवाब तो मिलेगा यूएस को भी. प्रॉब्लम ये है ना कि यूएस ने जो भी कदम उठाया उससे उनको भी फर्क पड़ेगा. They will be affected as well as the other countries. So definitely they are affected only. Now it is possible that Trump will use the threat of imposing tariffs as a negotiating tool. ठीक है, अगर उनको अपनी मर्जी करवानी है तो फिर टैरिफ्स इंपोज करके धमकी दे देंगे, नेगोशिएट करेंगे. तो उसे एक वैसे वेपनाइज होता है, वैसे इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ टूल. A few days ago, he had signed orders imposing 25% additional tariffs on Canada and Mexico and 10% on Canada. However, the tariffs on Canada and Mexico were delayed by 30 days following talks between Trump and the leaders of the two countries, which led to some concessions. देखो negotiating का आ गया ना कि उन्होंने इतना किया, फिर इन लीडर्स ने बातचीत करना शुरू करी, फिर कुछ कंसेशंस हुए बाय द लेटर. तो टू कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उन्होंने कंसेशन दिया. Now considering that the levies on steel and aluminum will be effective from March, there may be room to maneuver yet. तो ये मार्च से अगर स्टार्ट होगा तो रूम टू मैन्यूवर का मतलब होता है कि ठीक है नेगोशिएशन चल सकता है. ठीक है, अभी हाफ द मंथ अभी है बाकी. सो नेगोशिएटिंग, इफ दे कम अप विद द नेगोशिएशंस दे विल बी एबल टू टेक वन थिंग एज अ लेवरेज. तो वो बैलेंस आउट कुछ ना कुछ तो डील क्रैक कर लेंगे. ट्रम्प में ऑल्सो व्यू टैरिफ्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो ये दो चीजें उन्होंने टैरिफ्स क्यों लगाए हैं. एक नेगोशिएटिंग टूल, दिस वाज द वन रीजन ऑफ व्हाई टैरिफ्स वर इंक्रीज, and this comes out to be the second reason. He will be using these tariffs as an instrument to increase the domestic production. अगर इतनी सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं अपनी कंट्री में तो डेफिनेटली जो हेड ऑफ द कंट्री है तो उसका
उसकी तो ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वो अपने ही कंट्री का प्रोडक्शन क्यों ना बढ़ाए. हम भी तो करते हैं ना मेक इन इंडिया. So why not then? So the other countries will also do the same. That will, they can follow the protectionism, right? So this is one thing again, how the increased tariffs on imports will be working for US. It can be used as an instrument to raise domestic production. But then the author says, however, tariffs could also trigger an increase in the cost of production of other goods. ठीक है. अगर इम्पोर्ट, देखो इम्पोर्ट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. ये नहीं है कि हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती चीजों को तो इम्पोर्ट करें. नहीं, ये होता है एक रीजन, बट देयर इज अनदर रीजन आल्सो. हाउ एंड व्हाई द raw material that is used in the production, in the manufacture of one thing, can be used more beneficially in the production of something else, which can give us more फॉरेन करेंसी. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर इंपोर्ट हम कौन सी चीज करते हैं, हम मैन्युफैक्चर कौन सी चीज कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहाँ पे और क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, बहुत चीजें डिपेंड करती हैं उस पर, राइट. ऑल दीज थिंग्स आर इंटरमिंगल्ड. नाउ द पॉइंट इज, द ऑथर सेज दैट इफ इट tries to increase the domestic production, right, possibility that the cost of production of per unit भी अगर हम मानते हैं तो वो increase हो जाएगा. It is possible, right? So he says that tariffs could also trigger an increase in the cost of production of other goods. It's not only about that good, but other goods also. This is going to push up the inflation. Or see, as I said, all things are interrelated. आपने import पे रोक लगा दी, बढ़िया. आपने domestic production को increase करना चाहा, बढ़िया. तो increase तो होगा, लेकिन cost of production इसका भी increase हो जाएगा और दूसरे goods का भी increase हो जाएगा, तो उससे interrelated है. All the things that are there in the paraphernalia, right? Now this will restrict the policy options. अब अगर inflation increase हो जाता है, because the price will increase, cost of production increases, inflation increases. Now when the inflation increase, so this is going to be restricted. Policy options before the US Federal Reserve, अब ये policy में कैसे changes करेगी, वो restrictions आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि inflation ज्यादा है. और अगर इन्फ्लेशन को ही हैंडल करने के लिए हम, जैसे हमारी आरबीआई काम करती है वैसे उनकी फेडरल बैंक भी काम करेगी. सो अब उनका सिर्फ वो हो जाएगा कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए. They won't be able to come up with some active policy then. They'll only come up with the inflationary control policy. तो ये restrictions हो जाएंगे. तो what has the author done here? He has tried to understand or help you understand or analyzing the situation when the tariffs are increased, then who all are going to be affected. ये उसका pointer हो जाता है. ठीक है, ये दिया था. India today में Trump halts tariffs on Canada, Mexico for 30 days. Now, in its last meeting, as the Fed kept rates steady, it came under criticism from Trump. उन्होंने steady रखा rates, तो Trump ने criticize करना शुरू कर दिया. India accounts for a small share of US imports. India बहुत ज़्यादा steel, aluminum नहीं देता, small share है. In 2024, the country's exports of primary steel to the US had touched 450 million, while exports of aluminum were 820 million. As per reports, there is also the concern that the higher tariffs in the US will push exporting nations to look for alternative market. ठीक है, हायर टैरिफ्स रहते हैं अगर, जैसे यूएस ने अभी बढ़ाए स्टील एल्यूमिनियम पर, तो फिर क्या होगा? This is going to push the exporting nations to look for alternative markets. कुछ भी एबीसी कंट्रीज हैं जो कि स्टील एंड एल्यूमिनियम यूएस को सेंड करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं. अब वहां पे उन्होंने अगर इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए तो ये लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे इन कंट्रीज के. अब इनके पास स्टील एल्यूमिनियम है तो फिर वो क्या करेंगे? अगर यूएस मार्केट में इतना नहीं जा रहा है तो फिर वो दूसरी कंट्रीज में तो भेजेंगे ना अपने ही कंट्री का स्टील एंड एल्यूमिनियम. दिस इज गोइंग टू हैपन, right? So if it is difficult for them to export to US, they will start searching for some new markets. Then what will happen? Understand the situation. There is also the concern that the higher tariffs in the US will push exporting nations to look for alternative markets, with India a likely target. इंडिया में वो डंप कर सकेंगे. क्यों? क्योंकि बाकी की कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, हो सकता है यूएस की वजह से वो कम हो गए. अब वो अपना स्टील एल्यूमिनियम कहाँ करेंगे? टारगेट करेंगे इंडिया को. अब इंक्रीज इन सप्लाई हो जाता है तो डंपिंग, सम हैव सेड, कुड फर्दर पुट प्रेशर ऑन प्राइसेस.
Now, over the past few days, the Nifty Metal Index in shares of steel companies have been falling. ये रहा आपका निफ्टी. मेटल स्टॉक्स ऐसे सारे रेड में चल रहे हैं. ठीक है, जब ओवर सप्लाई हो जाता है, डंपिंग वाला सप्लाई हो जाता है, तो फिर क्या होगा? प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ेगा. एंड ऑल दीज आर गोइंग डाउन. दे हैव बीन फॉलिंग, इंडिकेटिंग इन्वेस्टर कंसर्न्स ओवर द अनसर्टेनिटी. पता नहीं क्या होगा. सो इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू एक्सेस द सिचुएशन केयरफुली. So the complete paragraph is giving you about how this is going to affect the exports of the other countries, export of steel and aluminum of the other countries, and what changes will it bring about geographically. Now, Trump's latest tariff announcement comes just ahead of Prime Minister Narendra Modi's US visit. There are indications of the Indian government showing pragmatism in dealing with Trump. Indications हैं कि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचेंगी. ठीक है, एकदम से हमने उस दिन जैसे किया था ना कि जब इनको इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजा था, तो वी डिड अ पैसेज ऑन दैट आल्सो, आर्टिकल ऑन दैट आल्सो, कि व्हेन दे वर सेंट बैक, तो इट ऑल द सिंपैथी वाज नॉट रिक्वायर्ड. यू नीडेड टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस एक्शन ऑफ ट्रम्प जस्टिफाइड. तो उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे जस्टिफिकेशन वाले. ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल, काइंडली गो बैक 2-3 डेज के पहले ही, मतलब अभी पिछले 2-3 दिनों में ही मैंने लिया है वो, तो आप वो सुन लेना. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट बेटर देन. So here also it is said that yes, India is going to use some rational proper, अपना दिमाग तो थोड़ा बहुत तो लगाएंगी, प्रैक्टिकल सोचेंगी. ठीक है. Now in the recent budget, duties on items such as high engine capacity motorcycles and high end cars, items exported by the US were cut. तो जब उन्होंने ड्यूटीज कट कर ली, मतलब यूएस के लिए आसान हो जाएगा ये चीजें खरीदना. ठीक है. द गवर्नमेंट शुड लिवरेज द गुडविल दिल्ली एंजॉयज इन वॉशिंगटन. ठीक है, बैलेंस आउट उनको करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर दिल्ली ने वॉशिंगटन के लिए कुछ अच्छा किया, अच्छा सोचा, तो वॉशिंगटन को भी दिल्ली के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए. So Delhi enjoys in Washington, negotiate with the new administration and take advantage of the opportunities. ये काम है जो इंडिया को करना चाहिए. You have to take advantage of the opportunities that arise in an increasingly uncertain global environment. तो uncertainty तो है, ये हमने पिछले स्लाइड में भी देख ली थी, जहाँ पे वो इंडेक्स से डिक्लाइन हो रहा था, फॉल हो रहा था. तो there is uncertainty in the market. The investors do not have much faith in the market, and what and how India should respond should be in a very practical and logical manner. Right? So we get the point of the author. What all did we discuss? अब मेन आइडिया के हिसाब से देखेंगे कि ये तो एक सेकंड स्ट्राइक था. Right? So the tariffs have been increased, and how India should act. Why? Because the rest of the countries to have done. वो इवोक तो कर लेंगे, इंडिया कैसे करेगी वो देखना है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो है प्रैक्टिकल, pragmatic. ठीक है, थोड़ा सा अपना लॉजिक या रैशनल यूज करके वो रिस्पॉन्ड करेंगे. ठीक है, द रेस्ट ऑफ द थिंग वाज explanation analyzing the situation caused because of the increase in the tariffs. बाकी सब वो एनालिसिस था. ठीक है. So if you come across the, if you wonder about what the style or what the tone of the passage would be, that would be analytical. क्योंकि उसने हमें पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश की है. अब हम देखते हैं इसका. देखो, उसने कहा था कि ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम होगा, नो एग्जेम्पशन, कुछ भी नहीं, एक भी एक्सपोर्ट कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होगा, बस सब पे लग जाएंगे ड्यूटीज, टैरिफ्स. ठीक है, ये था फर्स्ट. देन इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम मार्च, ये तो दिया था. तो देर इज रूम फॉर मेन्यूवर. इसे हमने लिंक किया था नेगोशिएटिंग टूल के साथ. दैट मीन्स दे हैव इनफ टू नेगोशिएट नाउ, because all these things will be implemented by March. Right? So there is room, मतलब इतनी जगह है, इतने दिन है, इतना विंडो ओपन है कि वो बार्गेनिंग कर सकें. ठीक है. और दूसरा यहाँ पे ये भी था कि वो टैरिफ्स को कैसे यूज कर रहे हैं. तो एक तो इंस्ट्रूमेंट ये रहा, एक नेगोशिएटिंग टूल्स रहा. तो दिस इज टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन.
But then this happens, okay, what will happen with the increased production? अगर हम ये भी समझ लेते हैं तो increased production से क्या होने वाला है वो आ जाएगा. And how the things are going to be affected, वो यहाँ पे आ गया. फिर डंपिंग होगा तो प्राइस पे असर पड़ेगा, and this index is going to fall. So the Indian government will have to assess the situation carefully. This becomes the point, because all these paragraphs were giving you the scenario what can happen because of the step taken by the US president. And this is what is supporting the author's point that yes, India is, there are indicators that the government will be using, like practical reasoning. And this increasingly uncertain hai, but our country has to take advantage of the opportunities. ये करना ही पड़ेगा उन्हें. ठीक है, मतलब दिमाग यूज करना पड़ेगा अभी, और वैसे भी वो करने ही गए हैं उधर. सो देखते हैं क्या होता है. So with President Trump imposing tariffs on steel and aluminium, India must carefully negotiate its way in an uncertain environment. दो चीजें थी, एक negotiation वाला और दूसरा uncertain environment है. Both the things have been given here. Important point here was latest tariff announcement comes just ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit. US visit, बस वो गए ही हैं, उसके पहले ही announcement हो गया. तो अब announcement हुआ तो फिर when they meet, so definitely they are going to talk about it. And according to the author, they'll be talking some sense, in the sense that they will be displaying pragmatism in the approach. वो तो करेंगे ही सही, अपना दिमाग तो लगाएंगे वो. That is the point, right? Author का भी यही कहना है. अब हम आते हैं वोकैबुलरी पार्ट पर. तो लेट अस सी. अनवेलिंग का मतलब होता है कवर, अनकवर कर लेना. ठीक है. वेल का मतलब होता है पर्दा, राइट. अनवेल करना, जब भी बीच स्क्वायर्स में या कहीं पे स्टैच्यूज लगती है ना, जब, तो दे हैव बीन, दे विल बी अनवेल्ड, द अनवेलिंग ऑफ द स्टैच्यूज. ठीक है. देन ऑन द फ्रंट मीन्स ऑन विच एस्पेक्ट, वेयर, जो हमारा बॉर्डर होता है उसको फ्रंट्स कहते हैं. जैसे ओपन अनदर फ्रंट, एक और हिसाब उन्होंने खोल दिया है. लार्ज स्वैट्स मीन्स लार्ज, a huge number you can say. मेनली स्वैट्स ऑफ लैंड होता है. ठीक है. तो यहाँ पे स्वैट्स ऑफ कंट्रीज हो गया. लैंड का तब हम यूज करते हैं देखो, दूर दूर तक रीजन्स अगर अफेक्ट हो जाते हैं, तो द लार्ज स्वैट्स ऑफ लैंड अफेक्टेड बाय द लोकस्ट्स. ठीक है. लोकस्ट का एक क्लाउड होता है, स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट. इसका मतलब वो, उसको हिंदी में टिड्डी कहते हैं. जब वो ऐसे एकदम क्लाउड बन के आती है और पौधों पर बैठ जाती है और पत्तियां खत्म, 1 मिनट में गायब. तो दैट इज द स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट, राइट. सो swaths of crops or land was destroyed because of the locusts. This can be a sentence. So it is a huge expanse, you can say, huge number. And expanse जब वो land की तरफ से आता है, उसके use में आता. Evoke is to bring out. ठीक है. तो evoke के हिसाब से हमारे पास देखो, woke तो voice हो जाता है, राइट. टू ब्रिंग आउट अ रिस्पॉन्स हो जाएगा evoke. रिस्पॉन्स हो सकता है, फीलिंग्स हो जाती हैं, इमोशंस आ सकते हैं बाहर. ये अब एक जनरल मीनिंग बता रही हूँ. ठीक है. तो इवोक इज टू ब्रिंग आउट. इट कुड बी अ रिस्पॉन्स, इट कुड बी अ फीलिंग, इट कुड बी इमोशंस, इट कुड बी एनीथिंग. इवोक ऑफेंसिव रिमार्क्स, कुछ भी, राइट. नाउ वोक का मतलब होता है वॉइस. सो अगर इसी के हिसाब से देखें तो एक प्रोवोक होता है. प्रोवोक का मतलब होता है इंस्टिगेट करना. इंस्टिगेट यानी भड़काना, दैट इज प्रोवोकिंग समबडी, राइट. रिवोक, रिवोक इज टू टेक बैक, रिपील. तो सैंक्शन, वॉर सैंक्शन अप्लाई किए जाते हैं और फिर उनको रिपील भी किया जाता है, उन्हें वापस भी लिए जाते हैं. रिवोक हो गया, राइट. कैलिब्रेटेड इज मेजर्ड. कैलिबर मेजरमेंट होता है,
measured, calculated, ठीक है, CALCULATED, calculated and measured means calibrated. Then negotiating tool में I have used this word, सभी को आता है ये word, I am sure, पर यहाँ पे एक root word है neg, and neg means no, right? So as I tell you to write a few words, आप वो neg के साथ कर सकते हैं, negate, neglect, negligence, negligible. Negligible मतलब insignificant number, nominal, right? नेग्लिजेंस हो गया मतलब आपने निग्लेक्ट किया है किसी चीज को, तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से चोरी हुई, ठीक है, तो इट वाज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड दैट द मर्डर टुक प्लेस, राइट, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था. नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, बड़ा जरा सा नॉमिनल अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, तो दैट इज नेग्लिजिबल. देन निगोशिएट एंड नेगोशिएशन हमारे पास तभी वो आ जाता है, तो नेगोशिएट, नेगोशिएशन, नेगोशिएबल एक्ट्स होते हैं, राइट. तो इसका मतलब आपने कुछ कहा, मैंने ना कहा, आई नेगेटेड दैट एंड देन आई पुट फॉरवर्ड माय ओपिनियन, so this is what is negotiation, right? So negotiate means you say no to the other person's opinion or whatever he is suggesting, right? And then you put forward your own opinion, तो वहां से आ जाता है. तो नेक्स्ट से आप एक और वर्ड आ जाता है हमारे पास, एबनिगेट. एक वर्ड आ जाता है रेनिगेड, ट्रेटर, ठीक है, और भी वर्ड्स आ जाएंगे. तो आपके पास जैसे आई हैव टोल्ड यू टू फॉर्म अ ट्री फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ, सो राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक, तो मिल जाएंगे और भी वर्ड्स फिर, ठीक है. वो नेगोशिएटिंग का हो गया आपका काम. रूम का मतलब होता है देयर इज इनफ बफर, इनफ टाइम नाउ. यहाँ पर रूम का मतलब टाइम हो जाएगा, इनफ होना. इन दिस केस इट इज इनफ टाइम, राइट. मैन्यूवर इज टू नेविगेट एज यू वुड वांट समथिंग, ठीक है. मैन का मतलब होता है यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, जैसे मैनुअल होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, ठीक है. तो ये मैन्यूवर यानी आप गाड़ी को अपने आप लेके जाते हैं या आप लोगों को अपने हिसाब से चला लेते हैं, तो यू आर मैन्यूवरिंग समथिंग. यूजली द कार्स आर मैन्यूवर्ड, राइट. तो उनको आप किस तरीके से लेके जाते हो इतने हैवी ट्रैफिक में, वो मैन्यूवर हो जाता है. लोगों को जब आप अपने हिसाब से चलाते हो तो वो मैन्यूवर हो सकता है. मैनिपुलेट होता है. सो यहाँ पे एक और रूट वर्ड आप लिखे लो एंड देन यू राइट डाउन योर ओन वर्ड्स. दिस इज मैन्यू मीन्स yourself on your own, ठीक है. तो यूजुअली इट इज लाइक मैनुअल लेबर के हिसाब से आप करोगे, तो यूजिंग हैंड्स में वो आ जाता है. मैनुअली इज वेयर यू आर डूइंग द थिंग्स ऑन योर ओन, तो दैट इज मैनुअल, यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ द मशीन, ठीक है. तो वो आ जाएगा मैन्यूवर करना इज टू नेविगेट. हाँ, एक फ्रेज लिख लो अब, कम अंडर क्रिटिसिज्म, ठीक है. तो इट केम अंडर क्रिटिसिज्म, एग्जामिनेशन, ठीक है, कहीं पे भी, पर उस पर क्रिटिसिज्म हुआ. इट अकाउंट्स फॉर समथिंग, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग. टू लुक फॉर, अगेन अनदर फ्रेज, टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मार्केट्स है, तो दिस इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. टू लुक फॉर बिकम्स अ फ्रेज, टू लुक फॉर समथिंग. एंड कंसर्न्स ओवर समथिंग होता है. How this preposition over is used with, I'll give you that, come on. Concerns over something, ठीक है. Then you can use the word say dispute over something. ये जो word over है ना, ये इस तरीके से use होगा, dispute over something, right. Disagreement over something, dispute हो गया, disagreement, controversy कर लो. जो भी ऐसे होंगे words जो कि एक इधर से जाएगा आइडिया, दूसरा इधर से जाएगा आइडिया, तो वहां पे हम ओवर यूज करेंगे.
This is the meaning of where over is used. So controversy over, disagreement over, dispute over, contest over, concern over, preside over a meeting, ये भी आ जाता है. ठीक है. Pragmatism is to show rational use of logic, या आपका rational. ठीक है. Practical, to be practical. Leverage is balance करना उसे, लेवल पे करना. इसका देखो लेवरेज में लेवल वर्ड आ जाएगा, बराबर कर लेना, तो लेवरेजिंग टूल यूज होता है. राइट, यू कैन रिलेट इट टू लेवल, दोनों को बराबर लेके आना, बैलेंस कर देना, दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ लेवरेज. ठीक है. दैट वाज ऑल about the vocabulary. Now for to read, so take a deep breath, please read this. This is a very interesting article. यहाँ पे मतलब आपको figurative language मिल जाएगी, आपके पास phrases मिल जाएंगे. Take a deep breath is something related to cricket, right? And about Rohit, Rohit Sharma, and about the century that he has just made. But that was an example. उसको देखकर उन्होंने क्या कहा है ऑथर ने, उसको ध्यान से पढ़ना. ठीक है. एज अ सेड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये थर्ड आर्टिकल है, आज का ही थर्ड आर्टिकल है उसमें, इंडियन एक्सप्रेस में. देन द सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, दिस इज अगेन रिलेटेड टू यूएस टैरिफ्स. हाँ, हमें थोड़ा बहुत ऐसी टॉपिक्स पढ़ने ना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी. अभी हमने डिस्कस किया कि जब टैरिफ्स इंक्रीज होंगे तो डेफिनेटली द कंट्रीज आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, बट देन यूएस इटसेल्फ विल आल्सो बी अफेक्टेड. हमने देखा था अभी कि वो खुद के लिए भी पॉलिसीज नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, giving rise to the inflation, and then the policy will be restricted. We discussed all this. But then when you read this article, the self-inflicted injury, this is in the Hindu, you'll be able to come up with a little more clarity over this topic. तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ये और पढ़ लो तो सर ठीक है. टैरिफ टैरिफ जो इतने दिन से चल रहा है, वो आप कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, टैरिफ्स कैसे लगे हैं, क्या करेंगे, कौन सी कंट्रीज अफेक्ट हो रही है, इंडिया कैसे अफेक्ट होगी, इंडिया कैसे जवाब देगी, और कनाडा या मेक्सिको क्या कर सकते हैं बैलेंस आउट करने के लिए चीजों को. ऑल दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. और यूएस पर खुद पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन आ जाएगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. उन्होंने तो इंजरी कर दी. So that's all. So stay logical, stay positive, and yes, be logical and be positive always, and be ready with a very active mind to come up with your reading part. See you.